Hello kids, welcome back to your computer classes. So kids, yesterday we were doing some formatting based on text formatting on in MS Word. Okay, so today also we will continue with that topic, but first of all let us revise what we have done in our previous class. Okay, so there are certain things that we have done in our previous class. So yesterday we have seen what is formatting. तो हमने ये देखा कि formatting means to organize text in such a way that it become more attractive and easy to read. हमने कल ये देखा that formatting is what? Formatting means to organize text in such a way that it become more attractive and easy to read. Formatting, what it does, it makes our text look more attractive and easy to read. Okay, है ना? तो what is the definition of formatting? So formatting means organize text in such a way that it become more attractive and easy to read. ठीक है, इतना तो कल हमने पढ़ा था कि जब हमें अपने टेक्स्ट को अगर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाना है, so what we have to do? If we want to make our text look appears attractive and beautiful, then what we have to do? There you have to fill the text with color. आपको उसकी alignment change कर सकते हो, आप उसको bold, italic, underline कर सकते हो. There are lots of things that you can do, and all of these things will help you to make your text look attractive. ये सारी चीजें क्या करती हैं? आपके टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाती हैं. Okay, fine. So let us move ahead. Let us see what is the next thing. अच्छा भाई, तो इसके बाद हमने देखा था what is word document. ये this I have explained you this also. Now formatting the text character. Next topic that we have read is formatting the text character. When you type the text from the keyboard, the individual text character appear in the text areas in a certain style of lettering known as font. So formatting the individual text character actually means formatting the font. The font option of the format help you to format the individual text character by changing its color, size and by changing its face, size and color. So this we have read yesterday that जब भी हमें change करना होता तो what we have to do? We have to if we want to change any character, so that there we want to change the size, color and face. Okay, moving ahead. Next we are changing the font or the font face. The typeface in which letters typed from the keyboard appear on the screen is known as the font face. This also we have done. कल हमने करके देखा था. कल हमने क्या करके देखा था? हमने font style चेंज करके देखा था. font style हमने कल की क्लास में क्या किया था? We have changed the font style. Okay, so what you have to do? You have to select the required text, then click on the format. What you have to do? You have to select the text. This I have told you yesterday also, that the most important thing before you start to edit your text, before you start to bring changes in your text, is to select your text. सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने अपने text को क्या करना है? Select करना. ठीक है? After selection of your text, what you have to do? Next, font to next you have to do after selection. Then आप क्या करो? आप फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करो और अपने डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक कर दो. तो उससे क्या होगा? आपका टेक्स्ट जो होगा वो एक डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल में अपीयर होगा. इसकी भी प्रैक्टिस हमने कल की थी, बट लेट अस सी इट वंस अगेन. चलो इसको एक बार और मैम करके दिखाएं. ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट था. देखो कल इसमें हमने कुछ चेंजेस लाए थे और वो चेंजेस कुछ एज इट इज हमें दिख भी रहे हैं, बट स्टिल
सपोज आई वॉन्ट टू चेंज द टाइटल, वाराणसी की टाइटल मुझे चेंज करनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया और उसमें से मैं अपना डिजायर्ड फॉन्ट जिस भी फॉन्ट में मुझे चाहिए मैं वो सेलेक्ट कर लूंगी। ओके, सपोज मुझे इसमें चाहिए, तो सी क्या हुआ, फॉन्ट स्टाइल में थोड़े से चेंज आ गए ना, फॉन्ट स्टाइल क्या हो गया, थोड़ी चेंज हो गई। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, चलो चलो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पे गए और फिर हमने से इसको एरियल ब्लैक कर दिया। सी एरियल ब्लैक करते ही क्या हो गया, ये और ज्यादा बोल्ड अपीयर होने लगा ना। यस, तो दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग, दिस इज हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल। ये तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देते हैं। दिस इज द वे बाय विच वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल। ठीक है भाई, हमने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, लेट अस मूव बैक टू आवर, या ओके, so on this page it is given changing the font style. We have already done, we have already seen how we can change the font style. Now moving ahead, next is change the font size. This also we have done yesterday. हमने font style भी change, font style के साथ साथ font size भी हमने क्या करके देखा था, change करके देखा था। हमने font size भी क्या किया था, change करके देखा था। ओके, फॉन्ट साइज जब हमने चेंज करके देखा था, तो फॉन्ट साइज रेफर टू द फॉन्ट, इट गिव्स अ नंबर, द बिगर द नंबर द बिगर इज द फॉन्ट साइज। जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा फॉन्ट साइज अपीयर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले आपने क्या करना, यू हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन you have to open the font dialog box. There you have to open the font dialog box. Font dialog box. Then click here to scroll the list through the list of the font sizes. ठीक है, let us do. ठीक है, so चलो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसकी फॉन्ट साइज क्या करनी है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है। मुझे इसकी फॉन्ट साइज क्या करनी है, मुझे इसकी फॉन्ट साइज स्मॉल करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी फॉन्ट साइज स्मॉल करने के लिए आई विल फर्स्ट, देखो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सेलेक्ट योर टेक्स्ट। आप बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट किए आप कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग इज टू सेलेक्ट योर टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देन देखो यहाँ पे 36 लिखा हुआ दिख रहा होगा। जब मैम अपना कर्सर उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, देखो वहां पे क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज। वहां पे हमने फॉन्ट साइज पे क्लिक किया और वहां पे मैंने उसको छोटा कर दिया, 20 कर दिया। अब देखो व्हाट हैपेंड, मेरी फॉन्ट क्या हो गई, वो वाराणसी जो लिखा था वो कैसा हो गया, वो एकदम छोटा सा हो गया ना। ओके, वो एकदम छोटा सा हमें नजर आने लगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट अस सी, सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कहाँ होता है, फॉन्ट स्टाइल के जस्ट बगल में आपको क्या मिलता है अपनी स्क्रीन पे, फॉन्ट साइज मिलता है। ओके, नाउ मूविंग बैक, ओके, now next is changing the font color, so this we will try next। अब font color हम try करने वाले हैं, this also we have done yesterday but today also we will try। so what are the steps to change the font size, to change the font color, sorry, font color of the text, follow these steps, the steps that are given below, that you have to follow। what are the steps, first select the required text, then click to see the font color palette, क्लिक टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट कलर। जो भी कलर आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक कर देना है।
ओके, तो आपने क्या कर देना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड फाइनली आपका क्या होगा, द फॉन्ट विल बी, द फॉन्ट कलर विल चेंज अकॉर्डिंगली। व्हाट विल हैपन, फॉन्ट कलर विल चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, लेट अस ट्राई। चलो इसको ट्राई करें हम। ओके, हमारा डॉक्यूमेंट ये रहा, और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका फॉन्ट कलर क्या करना है, चेंज करना है। आई वांट टू चेंज इट्स फॉन्ट कलर, ठीक है। तो इफ आई वांट टू चेंज इट्स फॉन्ट कलर, तो देखो इधर जब मैं इस ए पे लेके जा रही हूँ अपने कर्सर को, तो वहां पे वो क्या शो कर रहा है, फॉन्ट कलर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो बगल में ड्रॉप डाउन एरो है, मैंने यहाँ पे प्रेस किया। यहाँ पे देखो ढेर सारा पैलेट आया। मैं मोर कलर पे करूंगी तो मैं ग्रेडियंट भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं ऐसे करके ग्रेडियंट्स भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, है ना। नाउ, तो इफ आई विल क्लिक हियर, I have got lots of color. Here they are some standard color, और ये लोग कौन से कलर हैं, ये सब लाइट कलर्स हैं, ठीक है। Now, so what I will do, I will select any one of the suppose I want to click on green. So now see what happened, my text appears green here. मेरा टेक्स्ट किस कलर का अपीयर हो रहा है यहाँ पे, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन कलर का अपीयर हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। Okay, next thing that we have to do here is, after this, let us move ahead. Now suppose I want to change the color of this first line. First of all, I will change its font to the normal, say Calibri. Yeah, now I want to change the color. ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस फर्स्ट लाइन की क्या करनी है, कलर चेंज करनी है। See again I am telling you, most important thing is to select your text. Without selection आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते डॉक्यूमेंट पे। सिलेक्शन के बिना आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं ला सकते। ओके, सेलेक्ट कर लिया है ना, आपने सेलेक्ट किया, फिर आप कलर्स पे गए। नाउ इफ यू वांट टू मेक इट लुक, दिस इज व्हाट, ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज लाइट, दिस इज ऑरेंज। चलो मैंने इस कलर का कर दिया। सी आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, दोनों कलर्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहे होंगे, है ना। तो दिस इज द मेथड हाउ वी चेंज द कलर। ये तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं किसी टेक्स्ट का, किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करने का ये तरीका होता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद आफ्टर चेंजिंग द कलर, तो अभी हमने देखा हाउ वी कैन चेंज द कलर। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, वी कैन, हाँ, तो ये कल मैम ने आपको बताया था, हाउ कैन यू मेक योर कलर, हाउ कैन यू मेक योर टेक्स्ट अपीयर, यू नो, हाउ कैन यू मेक योर टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। आप ये कैसे करते हो, ये मैम ने कल आपको बताया था। तो आई एम लीविंग दिस टॉपिक, मैं ये टॉपिक छोड़ रही हूँ क्योंकि कल मैं हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। देखो ध्यान से समझना मैम की बात, अब तक हमने पढ़ा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अब तक हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ना है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। नाउ अ पैराग्राफ एज यू नो इज अ पीस ऑफ कंटिन्यूअस text written without pressing the enter key. The current paragraph, okay, so a paragraph is what, paragraph is what, a piece of continuous text. What is the meaning of continuous text? मतलब without break, without change in line, without changing, without pressing the enter key, without pressing the enter key, what happens,
Okay, without pressing the enter key, you have to write a text जो कि कंटिन्यूएशन में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। जैसे देखो यहाँ पे हम इसे भी एक पैराग्राफ कंसीडर कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर दिस आल्सो एज अ पैराग्राफ, बिकॉज देखो लाइन 1 2 3 4 ये कैसे लिखा है, लाइन 1 2 3 4 ये टोटल कंटिन्यूएशन में लिखा है। There are a number of options in the format menu that help you to apply various formatting feature to one or more paragraph, including paragraph option, bullet, numbering option। तो देखो पैराग्राफ चेंज करने के कई सारे तरीके होते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन देखो पहला हो गया पैराग्राफ ऑप्शन चेंज करने का, बुलेट एंड नंबरिंग। हम क्या कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग। अब जैसे कि जो पेज जो स्क्रीन अभी आपको अपने सामने दिख रही है, उसमें देखो उसमें कौन सा ऑप्शन यूज किया गया है पैराग्राफ को दिखाने के लिए, उसमें क्या यूज किया गया है, उसमें आप देख सकते हो उसमें बुलेट्स का यूज किया गया। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें समझाए गए हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में हमें समझाए गए हैं, दैट टू इन बुलेट। देखो ये क्या है, दिस इज व्हाट बुलेट, ये बुलेट है। फाइन, अब अगर मेरा मन करे कि नहीं भाई बुलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नंबर में समझाना है, तो मैं क्या करूंगी, देखो अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सी अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नंबर्स आ गया ना 1 2 एंड 3, तो ये हो गया बुलेट एंड सी दिस इज बुलेट and this is what, this is numbering, this is bullet and other one is numbering। तो इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों तरीके से we can हम अपने पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके नाउ चलो let me show you how to make your text appear in bullet or numbering। ओके तो ये हमारा टेक्स्ट है। ना बेटा सपोज इफ आई वांट टू ऐड समथिंग हियर, मान लो मुझे यहाँ पे मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया, मैंने एंटर प्रेस किया, दैट मीन्स मैंने पैराग्राफ चेंज किया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इफ आई वांट टू एंटर या तो चलो यहाँ सारनाथ, यहाँ पे आपको जहाँ पे सारनाथ दिख रहा है, ये जो आपको सारनाथ दिख रहा है, मैम को चाहिए कि मैम इसके बगल से पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो मैम ने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। नाउ मैम वांट्स कि ये भाई किस में नजर आए, बुलेट्स में या नंबरिंग में नजर आए। तो आप देखो अपनी स्क्रीन पे, जो स्क्रीन आपको मैम शो कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ लिखा हुआ जो दिख रहा है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है, फर्स्ट इज व्हाट, बुलेट्स, फिर अगला क्या है, नंबरिंग, फिर है सब टॉपिक, है ना। कहने का मतलब अगर मुझे अपने पैराग्राफ को बुलेट्स में डालना है, इफ आई वांट टू पुट देम इन बुलेट्स, तो आई हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट वन। अगर मुझे चाहिए कि नहीं भाई बुलेट्स में नहीं, वो नंबरिंग में आए, तो मुझे क्या करना है, नंबरिंग पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, okay, next what I can do, next what I am having here is, यहाँ पे देखो सब टॉपिक, अगर मुझे सब टॉपिक डालना है तो देयर आई कैन क्लिक। तो चलो करके देखते हैं हाउ वी कैन चेंज दिस ऑप्शंस। तो देखो अगर मैं पहले बुलेट्स पे क्लिक करूं, अगर मैम यहाँ पे बुलेट की, देखो बुलेट के बगल में इधर आपको देखो मैम ने जहाँ अपना कर्सर रखा वहां पे बुलेट लिखा हुआ है, और उसके बगल में आप देखो एक ड्रॉप डाउन एरो है। तो मैम जब ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो देखो क्या होता है, सी
मैम जैसे ही इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास कितने प्यारे ऑप्शंस आ रहे हैं एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। देखो मेरे पास कितने प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं कि बुलेट लाइब्रेरी, दिस इज व्हाट, दिस इज बुलेट लाइब्रेरी। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं या तो ऐसा बुलेट सेलेक्ट कर सकती हूँ, या तो इस तरह का, या तो स्क्वायर, या तो मिनी स्क्वायर, या तो स्टार, या तो एरो। अच्छा कहने का मतलब, अच्छा देखो जब आप भी आंसर करते होगे, आप भी एग्जाम में कभी आंसर करते होगे, तो व्हाट हैपन, आप कुछ इस तरह का आंसर करते होगे ना मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप आंसर करते हो तो आप कुछ इस तरह का करते होगे ना, कभी आप ऐसे बुलेट्स बना देते होगे, कभी आप 1 लिख देते होगे, या कभी आप ऐसे एरो बना देते होगे, एरो, और यहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन दिखाते होगे। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पे भी नजर आ रही हैं, वही सारी चीजें हमें इधर भी नजर आ रही हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके, तो चलो हम भी करके देखें कुछ इनमें से ही कोई चीज हम भी करके देखें। ओके सी, अब मैम ने क्या किया, मैम फिर से समझा रहे हैं आपको। मैम ने यहाँ से, रुको मुझे बैक स्पेस करने दो। देखो मैम को क्या चाहिए था, मैम को चाहिए था कि सारनाथ के बाद क्या हो जाए, पैराग्राफ चेंज हो जाए। मैम को चाहिए था कि भाई सारनाथ के बाद पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो मैम ने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैम को चाहिए कि ये सारे जो पॉइंट लाइन है वो पॉइंट्स में आए, तो मैम क्या किए, मैम सबसे पहले बुलेट वाले ऑप्शन में गए और मैम ने ये वाला बुलेट सेलेक्ट किया। तो सी व्हाट हैपन, देख रहे हो यहाँ पे ये बुलेट बन के आ गया ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैम ने यहाँ पे बुलेट बना दिया। अब देखो अगर मैं रिलीजियस के बाद फिर से एंटर करती हूँ तो देखो अगला फिर मुझे बुलेट मिल गया। और अगर मैं अब मैं बाई के बाद फिर एंटर करती हूँ तो देखो फिर मुझे बुलेट मिल गया है ना। सी क्या हो रहा है, बार बार मैम क्या हो जा रहा है, जितनी बार मैं एंटर प्रेस करूंगी उतनी बार क्या होता जाएगा, बुलेट्स आते जाएंगे मेरी स्क्रीन पे, क्या होते जाएंगे मेरी स्क्रीन पे, बुलेट्स आते जाएंगे। जितनी भी बार मैं चेंज करूंगी उतनी बार मेरी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा बेटा, बुलेट्स आते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, चलो तो ये तो हमने देखा बुलेट्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब मैम देखो, मैम आपको दूसरे तरीके के बुलेट्स दिखाएं। मुझे सपोज करो मुझे वो सर्कल फिल वाले बुलेट मुझे वो पसंद नहीं आए, मुझे वो राउंडेड बुलेट पसंद नहीं आए, और मैंने क्या किया, मैंने एरो मेथड यूज किया, मैंने क्या किया, एरो मेथड यूज किया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जब मैंने एरो यूज किया तो मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, एरो आ रहा है ना, मेरी स्क्रीन पे देखो एरो आ रहे हैं। ओके ठीक है, ओके वेरी गुड। नाउ अब चलो, अगर मैम को एक दूसरा बुलेट चेक करना है तो फिर क्या किया हमने, हम यहाँ पे गए और यहाँ पे इस बार मेरा मन है स्माइलिंग फेस यूज करने का, तो मैंने स्माइलिंग फेस लगाया। देखो हाउ क्यूट ना, अब मेरी स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है, स्माइलिंग फेस आ रहा है ना, बुलेट्स की जगह क्या आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, अब स्माइलिंग फेस अब मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं इंस्टीड ऑफ बुलेट्स। तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द दिस इज द वे हाउ वी कैन चेंज द बुलेट्स। देखो बुलेट्स को हम कितने तरीके से हम अपनी स्क्रीन पे ला सकते हैं, स्माइली की तरह से, या एरो के मेथड से, टिक के मेथड से, लोअर राइट शैडोड स्क्वायर के मेथड से, फ्रोनिंग फेस के मेथड से, हाइफन के मेथड से, ब्लैक डायमंड। सो देयर इज नो एंड, हम कितने सारे तरीके से अपनी स्क्रीन पे, ओके हम कितने सारे तरीके से अपने स्क्रीन पे क्या ला सकते हैं, हम कितने ढेर सारे तरीके से अपने स्क्रीन पे ला सकते हैं बुलेट्स।
ना इफ आई वांट कि भाई मेरे स्क्रीन पे बुलेट्स नहीं चाहिए, मुझे नंबरिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने नंबरिंग को प्रेस किया। मैंने क्या किया ना बेटा, मैंने नंबरिंग प्रेस किया। ठीक है, अब देखो नंबरिंग में भी देखो आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो वन थिंग, हम नंबरिंग कब यूज करते हैं, जब हम एक सीक्वेंस दिखाते हैं। नंबरिंग हम तब यूज करते हैं जब हम कोई सीक्वेंस दिखाते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, देन नेक्स्ट इज ABC, देन 1 2 3 अगेन, है ना। देखो अलग अलग तरीके हैं ना। देखो पहला खाली 1, अब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, वहां पे रोमन में 1 लिखा है और फिर क्या हुआ है, एक छोटा सा डॉट है। सेकंड में क्या हुआ है, 1 लिखा है और उसको वन साइड ब्रैकेट से कवर किया है। थर्ड में क्या है, 1 लिखा है और उसको बोथ साइड ब्रैकेट से क्या किया है, बोथ साइड ब्रैकेट से कवर किया है। तो यू कैन चूज एनी ऑफ दिस मेथड, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा करने के लिए। आप इनमें से कोई सा भी मेथड यू कैन यूज। ओके नाउ नाउ मूविंग अहेड, लेट अस मूव अहेड। तो हमने इतना देखा, चलो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस इट। तो हमारे स्क्रीन पे आपको इतना सब दिखा और चलो अब मैम क्या करें, मैम को चाहिए नंबरिंग। तो मैम ने क्या किया, 1 पे प्रेस किया और सबसे पहले मैम ने ये वाला ऑप्शन चूज किया। तो देखो क्या हुआ, कैपिटल ये रोमन न्यूमरल्स में आने लगा ना हमारी स्क्रीन पे। हमारी स्क्रीन पे ये किस नंबर में आ रहा है, रोमन न्यूमरल्स में आ रहा है। तो इसकी नंबरिंग तो हो रही है रोमन न्यूमरल में। और देखो जब भी हम बुलेट्स का यूज करते हैं, जितनी बार हम एंटर प्रेस करते हैं, अब देखो वो नंबर आगे बढ़ता ही जाएगा, है ना। आपको डिफरेंस दिख रहा है। देखो जितनी बार भी हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, वो नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, करेक्ट, एंड दैट टू इन अपर केस। रोमन न्यूमरल्स में किस केस में यहाँ पे आ रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स में ये अपर केस में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस डू इट इन, चलो अब क्या करें, ABC के फॉर्म में मुझे चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये किस में आ गया, कैपिटल ए के फॉर्म में आया। फिर मैम ने क्या किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे क्या किया, एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस किया। हाँ, सी व्हाट हैपेंड नाउ, अब ये किसके फॉर्म में आ रहा है, ABCD के फॉर्म में। वो हमारी स्क्रीन पे, अब वो हमारी स्क्रीन पे ABCD के फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो देखो ये नंबरिंग से क्या होता है, हमारी स्क्रीन पे वो क्या दिख रहा है, हमारी स्क्रीन पे वो नंबर शो हो रहा है। ओके ना, डन अप टू हियर। नाउ अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया। ओके, लेट अस मूव अहेड। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे स्मॉल केसेस, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ साइड कवर्ड आ रहा है ना। बोथ साइड से ये क्या है, कवर्ड है। देखो 1 2 3 4, देखो दिख रहा है। ओनली डिफरेंस इज दैट ये दोनों साइड से क्या है, दोनों साइड से ये प्रॉपरली कवर्ड है। ओके, सो किड्स वी हैव डन अप टू हियर। अब बाकी के पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।